Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering Preamble from Indian Polity for the upcoming UPSC CSE examination. So first of all, Preamble किस चीज़ पे based है? It was based upon the Objective Resolution. So Objective Resolution was a document which was introduced by Jawaharlal Nehru on December 13th, 1946 in the Constituent Assembly. ठीक है, so it was a basic set of principles which would guide the formation of the constitution. ठीक है, उसी को बाद में preamble में convert कर दिया था and it reflects the minds of the constitution makers. ठीक है, so this is about the preamble. थोड़ा सा introduction type है हमारे पूरे constitution का. preface जो होता है ना, preface या introduction type है. However, it was added at the last. It was not something which was added before writing the constitution. बाकी पूरा constitution खत्म हो गया था when it was the entire constitution was enacted. Preamble was added at the last. ठीक है, why was it added at the last? In order to ensure कि पूरे constitution का essence is maintained. It is properly kept in the preamble. That is why it was added in the last. ठीक है. Now, the preamble was amended via the 42nd Constitutional Amendment Act. So this amendment was brought about in 1976 during the emergency period. ठीक है, emergency period में who was the prime minister? It was श्रीमती इंदिरा गांधी जी. ठीक है, Indira Gandhi ji was the prime minister and certain words were added to the preamble. So the words which were added were socialist, secular and integrity. ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी मतलब SSI, या इसको ऐसे कर लो SIS, सिस. सिस किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है? सिस्टर. ठीक है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि इंदिरा गांधी जी वॉज लाइक अ सिस्टर टू इंडियंस. ठीक है, बस लर्न करने के लिए मैंने बोला है ये. ठीक है, so that way you can remember socialist, integrity and secular were added by Indira Gandhi ji. And do not confuse these S with sovereign or secular some other word here. ठीक है, तो कैसे रिमेंबर करेंगे कि SIS में क्या क्या था? देखो, इन सबको कनेक्टेड विद इंदिरा गांधी जी. सो सोशलिस्ट, सो इंदिरा गांधी जी, इफ़ यू माइट बी नोइंग, शी वॉज अ लेफ्टिस्ट लीडर. है ना, लेफ्टिस्ट लीडर्स के क्या करते हैं? दे प्राइमरली आर इन फेवर ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, सो सोशलिस्ट वैसे लर्न हो जाएगा आपको. देन सेक्युलर, शी बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी. सो इफ़ यू माइट हैव noticed, Congress generally indulges in secular politics. ठीक है, so that way you can remember this word also. And integrity का मतलब होता है कि वही overall the entire country will be and मतलब integrity will be maintained, highest moral principles will be maintained. ठीक है, ये सब तो ये भी उन्होंने she had added this word as well. Next we'll be looking at certain core principles which have been mentioned in the preamble. So these words have been mentioned. ठीक है, सो इसमें क्या है? सबसे पहले तो सोवरेन बोला है इंडिया को, है ना. सो इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, बट इट इज़ रादर एन इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट. ठीक है, सो फर्स्ट आई विल जस्ट शो यू द इंटायर प्रियम्बल, देन वी विल कम बैक टू दिस, जस्ट सो दैट यू हैव अ जनरल आइडिया कि क्या क्या होता है. एंड डू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट यू नीड टू नो द प्रियम्बल प्रॉपरली. ठीक है, जितनी भी बार इफ़ यू कैन रीड इट एज मेनी टाइम्स इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, because minute questions may be asked from it. So now I'll just show you the preamble. So this is the the preamble of India. So we'll just read it once. We the people of India. So the phrases which have been highlighted, which are in bold letters, those are important. Okay, so we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ठीक है, all these adjectives are very important and we'll be looking at those, the meaning of these. ठीक है, and to secure to all its citizens justice,
सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. सो यू नीड टू रिमेंबर कि किस किस की बात करिए. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है. देन वी हैव लिबर्टी. सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है. देन वी हैव इक्वालिटी. So equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity मतलब brotherhood. ठीक है. तो इक्वालिटी दो टाइप के दिए हैं, एस एंड ओ, दैट इज स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. इसको लर्न कैसे करेंगे? इक्वालिटी सन से लर्न कर लो. सन और डॉटर्स के बीच में देयर शुड बी इक्वालिटी. ठीक है. तो सन का आप एस और ओ यूज़ कर लो, देन दैट मीन्स स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है. लिबर्टी के लिए दिस इज़ वेरी, इफ़ यू रिपीट दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप वैसे ही लर्न हो जाता है. बट नहीं तो ये TEBFW. ठीक है. तो इसको हो जाएगा बेट फॉरवर्ड. ठीक है. BET से बेट और FW से फॉरवर्ड, बेट फॉरवर्ड. लिबर्टी किसका? सो लिबर्टी टू बेट मतलब बेटिंग करने का, मतलब दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस. ठीक है. बेटिंग एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए लिबर्टी होनी चाहिए. ठीक है. सो बेट फॉरवर्ड, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, वर्शिप. ठीक है. एंड जस्टिस, दिस इज इजी टू रिमेंबर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. तो इसका क्या, SEP मतलब वी आर जनरली स्केप्टिकल कि अगर जस्टिस हमें मिल रही है कि नहीं, है ना. सो स्केप्टिकल से SE एंड P से SEP, that is socio economical and political justice. Then fraternity means brotherhood. Then assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So this integrity was added via the 42nd Amendment Act. Even secular was added via that, and socialist. ठीक है. वो भी उसी उसी से ऐड किया था, ये वाला सोशलिस्ट. ठीक है. देन आगे क्या दिया, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो ये भी याद रखना कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन मेंशन्ड. ठीक है. दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, रिमेंबर द डेट प्रॉपरली. 1949 का 26 नवंबर है. डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो प्रियम्बल में क्या दिया है कि 26 नवंबर को दे हैड अडॉप्टेड, इनैक्टेड. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. कि प्रियम्बल में दिया है कि 26 नवंबर को दे हैड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड एंड गिवन टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द बेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है. अभी नाउ वील गो बैक टू दिस. तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, we were looking at the various adjectives which have been mentioned in the preamble. So first of all, sovereign. Sovereign मतलब क्या होता है? India is an independent state. This is the core meaning of being sovereign. ठीक है. Remember that. मैंने क्या बोला? Sovereign मतलब independent free state है India. ठीक है. So India is neither a dependency nor is it a dominion of any other nation, but it is rather an independent free state. ठीक है. Then we'll move to socialist. Socialist, this was added via Indira Gandhi ji via the 42nd Constitutional Amendment Act. Socialism, as you might be knowing, it is a political and economical system जहाँ पे क्या होता है, state will be leading the commanding heights of the economy. मतलब state will be the one who will primarily own all the methods of production और जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, स्टेट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन देयर फंक्शनिंग. ठीक है. सो यहाँ वही दिया है ये वैसे बेसिक सोशलिज्म की डेफिनेशन है. तो अ प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी विच हैड एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड वाज USSR. ठीक है. बट now India follows a brand of democratic socialism wherein थोड़ा mixed economy type system है. It is a blend of both socialism as well as capitalism. ठीक है.
यहाँ पे वही दिया, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इट इज़ नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. कम्युनिस्टिक वन इज द वन विच वॉज established via Karl Marx's ideas. ठीक है. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhiism, leaning heavily towards Gandhian socialism. ठीक है, that is stateless society. Next we look at secular. तो सेक्युलर भी कहाँ पे कैसे आया था? इट वॉज अंडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी दैट दिस वॉज ऑल्सो एडेड. ठीक है. सेक्युलर का मतलब क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ सेक्युलर इज दैट देर इज नो, मतलब कि देर exists a separation between the politics, government, everything and the religion. ठीक है. So religion is considered a different sphere altogether. ठीक है. That is known as secularism. Now this secularism also has two types. ठीक है. There are two types of secularism. There is positive secularism and there is negative secularism. ठीक है. Positive secularism में क्या होता है कि state will be helping all the religions equally. ठीक है. State will promote and help, not exactly promote but helping all the religions equally. ठीक है. All religions. Whereas negative secularism में क्या होगा? There will be no intervention of the state when it comes to religion. ठीक है. No intervention. So this is a very important. Negative secularism means no intervention, whereas positive secularism means state will be intervening when it comes to religion, but it will be maintaining principled distance. Principled distance maintain करेगा. ठीक है. So this much you should be knowing for secular. So India has a brand of positive secularism. Now we look at democratic. So democratic का मतलब, as you might be knowing, people will be possessing the supreme power. ठीक है. Supreme power is with the people. ठीक है. It is the government by the people. ठीक है. तो direct democracy, this democracy is again of two types. We have direct democracy and we also have indirect democracy. इंडिया में क्या चल रहा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, एंड दे विल बी द वंस हु विल बी रनिंग द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर. ठीक है. Whereas डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा? People will play a major role in policy making and other such activities. So for example, Switzerland is considered to be an example of direct democracy. ठीक है. तो there are various provisions in direct democracy. काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. So we'll be looking at some of those. So one of the provision of direct democracy is the referendum. Referendum का मतलब होता है कि certain legislation or an act which the government has to मतलब has proposed, that will be referred to the people. Referendum मतलब refer करा है लोगों को for their so the people will be voting upon it कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो वाला act. ठीक है. A very good example of this will be Brexit. ठीक है. Brexit हुआ था wherein UK had exited the वो यूरोपियन यूनियन. ठीक है. तो ब्रेग्जिट के टाइम पे दे हैड कंडक्टेड अ रेफरेंडम इन यूके एंड वेर इन द पीपल हैड वोटेड कि दे वांट टू लीव यूरोपियन यूनियन. ठीक है. सो इट वाज प्राइमरली voted for by the people. ठीक है. देन देयर इज द कंसेप्ट ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव में क्या होगा? पीपल विल themselves propose a bill to the legislature. ठीक है. तो वो क्या करेंगे? they'll take an initiative and they'll propose a bill. they'll come up with a bill और मतलब कुछ भी legislation का idea they'll come up with it and that will be proposed to the legislature. ठीक है. So the word itself is self-explanatory, initiative. So they'll be taking an initiative. Next we have recall. recall में क्या होगा? Again self-explanatory word है. recall मतलब वापस बुलाना. सो द वोटर्स कैन रिमूव देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो जिसको भी इलेक्ट करा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव, इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू व्हाट द पीपल लाइक, सो दैट पर्सन कैन बी रिमूव्ड. ठीक है. दिस इज नोन एज रिकॉल. ठीक है. देन वी हैव प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्टेनिंग पीपल्स ओपिनियंस, है ना. सो
रेफरेंडम में क्या है, जो भी वोट करके किसी भी लेजिस्लेशन पे वोट करके पीपल वट एवर दे गिव द डिसीजन दैट विल बी फाइन फुल एंड फाइनल, ठीक है। Whereas plebiscite में only the opinion is obtained of the entire population upon any issue, ठीक है। So these are the four examples of direct democracy in action, ठीक है। Next we'll look at some other words which have been mentioned in the preamble. We have republic, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, एनी स्टेट विच हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, any country which has an elected head of state. So, for example, we have a president who is indirectly elected. ठीक है, so that is why we are a republic. Whereas जैसे ब्रिटेन यूके में देर इज मोनार्की इन प्लेस वेयर इन द हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है। उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, आई एम सॉरी, हायरार्की रहती है उनकी, वही हेरिडिटरी रहता है कि पापा थे, सॉरी उनकी मम्मा थी क्वीन एंड नाउ द सन इज द किंग चार्ल्स, ठीक है। सो दैट इज मोनार्की। वी हैव रिपब्लिक। देन जस्टिस, जस्टिस का क्या क्या दिया है, सेप हमने स्केप्टिक करके लर्न किया था, है ना, SEP, वी आर स्केप्टिकल अबाउट जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री। स्केप्टिकल, तो स्केप्टिकल से SEP करके सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए। एंड दिस आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, कि वी शुड हैव सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दिस आइडिया वॉज टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन विच अकर्ड इन 1917, ठीक है। तो देखो, रशियन रेवोल्यूशन के बाद में क्या, USSR वॉज फॉर्म्ड, है ना। USSR वॉज प्राइमरीली सोशलिस्ट, अ सोशलिस्टिक कंट्री, ठीक है। तो सोशलिस्टिक कंट्रीज में होता क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एवरीवन, इक्वालिटी एंड इक्वल, मतलब जस्टिस शुड बी प्रिवेलिंग, ठीक है। तो उससे यू कैन लिंक कि जस्टिस है सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, दैट वाज टेक द आइडिया वाज टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी यू माइट बी नोइंग कि क्या होता है, इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। सो absence of restraints on the activities of individuals, and at the same time providing opportunities for the development of individual personality, ठीक है। So I'll just explain it over here once. देखो, um, जो justice है, I'm sorry, liberty है, liberty is generally considered to be of two types, ठीक है। there are two types of liberty, यहाँ पे बता देती हूँ मैं ऐसे करके। there is positive liberty and we also have negative liberty, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी सबसे पहले देख लेते हैं। नेगेटिव लिबर्टी मतलब कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जो भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, दे वोंट बी हैविंग एनी रिस्ट्रेंट्स एंड दैट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी, मतलब कि कुछ भी उनको रोक नहीं लगी रहेगी कि काम करने के, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव आर्टिकल 19, है ना। तो फ्रीडम फॉर स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब है हमारे पास, है ना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि द स्टेट विल बी हेल्पिंग, द स्टेट और द कंट्री का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और द स्टेट, दिस विल हेल्प द सिटीजन, द सिटीजन टू अचीव their full potential or freedom, ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप कि द स्टेट विल बी टेकिंग एक्शन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट जो भी सिटीजन है दे कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। मतलब कि स्टेट जो रहेगा, हमारा गवर्नमेंट रहेगा,
वो लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है, दैट एंड लोगों की हेल्प करेगा ताकि दे कैन डेवलप मोर, है ना, उनका डेवलपमेंट हो एंड एम्पावरमेंट हो, ठीक है। दिस इज नोन एज पॉजिटिव लिबर्टी। सो वी हैव बोथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड। वैसे एज सच कहीं पे भी ऐसे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पॉजिटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी है, बट हम लोग प्राइमरली पॉजिटिव लिबर्टी वी फॉलो इट, ठीक है। सो वी फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं हमारी, है ना, देन वी हैव अ लॉट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इक्वालिटी। सो वो इक्वालिटी मतलब एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी वन, ठीक है, एंड दिस विल बी बेटर कवरिंग इन आर्टिकल 14, उसमें अच्छे से विल स्टडी अबाउट दिस। देन वी हैव फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड। सो देयर शुड बी ब्रदरहुड अमंगस्ट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नो एज सच डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, है ना, और कुछ भी जो पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड in fact the partition period saw a lot of communal tensions as well, ठीक है, तो that is why this word is also there कि there should be brotherhood in the country, fraternity होनी चाहिए। नेक्स्ट है वी लुक एट द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेरूबारी यूनियन केस था ऑफ 1960, इन दैट द सुप्रीम कोर्ट or the Supreme Court had come up with the matlab they had they had stated that preamble is not a part of the constitution, ठीक है। तो ये हमको याद करना है कि बेरूबारी यूनियन केस में द दे हैड सेड दैट preamble is not a part of the constitution, but afterwards in the Keshav Nanda Bharti case preamble was considered to be a part of the constitution, ठीक है। देन एल आई सी ऑफ इंडिया केस में भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना था, ठीक है, प्रियम्बल को। सो दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है, बार करना किसी को, बार्ड। सो द प्रियम्बल वॉज बार्ड फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेरूबारी यूनियन केस। प्रियम्बल वॉज बार्ड फ्रॉम being a part of the constitution, ठीक है। That is how you can remember the Berubari Union case. Then we have the Keshav Nanda Bharti case. केशव नंदा भारती केस में ये आपको तो पता ही होगा, दिस इज़ अ वेरी फेमस केस बेसिक स्ट्रक्चर का, जहाँ पे था प्रियम्बल इज़ अ पार्ट। बाकी सारे केसेस में दे स्टेटेड कि प्रियम्बल इज इंडीड एन इंटेग्रल पार्ट। ट्राई टू रिमेंबर द ईयर्स एज वेल, ठीक है। सो क्या क्या है, बेरूबारी यूनियन केस वॉज इन 1960। देन सो 1960 हम कैसे लर्न करेंगे, 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, है ना, सो 26 जनवरी को, है ना। देन 10 years later, 10 years after 1950, in the बेरूबारी यूनियन केस दे सेड के प्रियम्बल तो है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है, वैसे करके आप लर्न कर लो। फिर केशव नंदा भारती केस वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस के 1973 में, है ना। दिस आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर रिमेम्बरिंग, यू विल रिक्वायर एनी ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग हियर। देन वी हैव LIC ऑफ इंडिया केस, दिस वॉज इन 1995, ठीक है, तो इसको आप वैसे लिंक कर लो। 1996 में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, है ना, तो 13 डेज़ के लिए एक गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, ठीक है, तो उससे आपको लर्न हो जाएगा कि उसी से एक साल पहले LIC ऑफ इंडिया केस आया था एंड वेर इन preamble was considered to be an integral part of the constitution, ठीक है। these are just small links which I am providing you, small memory connections, because इसके बिना अगर बस एक फैक्ट ऐसे आइसोलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे ना, देन you'll forget it very fast, ठीक है। सो इट इज़ important to make some memory connections in order to help you remember this for a longer time. नेक्स्ट वी लुक एट द नेचर। सो देखो जो प्रियम्बल है इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, सो इट कैनॉट यू कैनॉट टेक इट इन टू द कोर्ट एंड से कि मेरे को ये मिला ही नहीं है इक्वालिटी, यहाँ प्रियम्बल में मैंशनड है पर मेरे को नहीं मिल रही है,
ठीक है, सो दिस इज़ नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन्ड है कि द प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिशिएबल एंड इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, और इनैक्टमेंट क्या क्या है? इट वाज इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली and it was only enacted after the rest of the constitution was already enacted. So I had already told you this, कि this was added at the last, so it was also enacted in the last only. ठीक है, ताकि उसका essence would be maintained, पूरे जो constitution का essence है that is maintained. ठीक है, now we look at some miscellaneous points related to this. ये MCQs में पूछ सकते हैं, जैसे सोशलिज्म जो है ना, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोशलिज्म इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किस में बोला था? SR बोमई केस में। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? SR बोमई केस had said that secularism is a part of the basic structure of the constitution. इसको बस लर्न करने के लिए मैं ऐसे कुछ भी स्टोरी बना रही हूँ। बोमाई मतलब बॉम्ब, तो बॉम्ब मतलब वायलेंस है ना, कम्युनल वायलेंस काफ़ी होता रहता है हमारे कंट्री में, मतलब पहले बहुत ही होता था। बाबरी मस्जिद और ये सब इशू बहुत ज़्यादा हुआ था, सो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिसार बोमई केस का लेट मी टेल यू द ईयर। सो दिस जजमेंट केम इन 1994। ठीक है, 1994 में हुआ था ये। तो बाबरी मस्जिद राइट्स कब? 92 में हुए थे, एज फार एज आई रिमेम्बर, है ना। तो ये SR बोमई केस 2 years आफ्टर दैट, मतलब दैट वाज अ मेजर कम्युनल skirmish which had taken place in India। उसके 2 साल बाद SR बोमई केस, उसमें बोला गया कि सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आप बोमई, बोमई को बॉम्ब, बॉम्ब मतलब वायलेंस और कम्युनल वायलेंस। ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए इंडिया में, बिकॉज सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्रियम्बल में ओनली दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, so the question should um, be limited to this much only according to me। ठीक है, so thank you, kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful। You can also follow my telegram channel for any updates। Thank you।